respected Deputy Director Nathpant Kushalnath Mishra sir, a regarded scholar of Sanskrit, my younger brother Surkant Tripathi ji. Really, it is the matter of the pardon that I am starting from off the dais. On the dais, Kanhaiya Singh ji, who has given very lucrative and attractive lecture while concerning the foreign policy to the ancient history. It is really very hard not to crack to speak in purview of historical perspective and interpretation of the foreign policy. K.K. Pathak ji, who has very long relation and rapport with me since 1999, and he was also topper of political science, 1 year junior to me, and man of later of political science, who has given really very interpretive and productive lecture for the foreign policy, and he has not left anything to speak and subject matter for me. So I will take only 5 to 6 minutes because it is very difficult to listen. I have been allotted 20 minutes, but I will take only 5 minutes because a lot of students are really very difficult sitting here in scorching heat, and basically my respected teachers are here. It is very tough work to listen anyone in such situation. So I will not take much time, but since I am really here for chair the session, so I have to speak something about the topic which is really not very easy to speak. It is really all the people who are present here have given and delivered very stupendous lecture over the topic about the foreign policy and its changing dimensions and paradigm shift from 2019 to till now. So it is very difficult. But one thing is very important, which is to be expressed here for the students, that today is the era of de-hyphenation policy in realm of the foreign policy. This de-hyphenation policy, I will interpret all the things after 2019 and the foreign policy in purview of de-hyphenation policy. My respected younger brother T.P. Singh sir is not here. I am showering a lot of respect for him, but he is really intellectual in field of this international politics. So the policy of de-hyphenation and interpreting the foreign policy in realm of de-hyphenation policy, it is very important. है क्या ये डी-हाइफनेशन की पॉलिसी, इसको समझने की आवश्यकता है। 5-7 मिनट दे सकते हो आप लोग, पीछे आवाज नहीं आ रही है, मतलब सुनने की स्थिति नहीं आप लोग। 5 मिनट बैठ सकते हो, 5 मिनट गाड़ी से क्यों मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब बहुत ज्यादा हम बोलते हैं और लास्ट में अब सबसे खराब स्थिति जो अध्यक्ष होता है उसकी होती है, क्योंकि वहां तक आते आते सभी लोग थक चुके होते हैं। और चूंकि ये एक इंटेलेक्चुअल लेक्चर है, लेकिन मैं आपको इनविजिलेटिव करने के लिए एक बताता हूँ। एक सभा में एक संगीतज्ञ के अपना हाथ मूंद के गाए जा रहे थे हारमोनियम पे। आधे घंटे में हाथ खोला तो केवल एक आदमी बैठा मिला वहां पे। हजारों की संख्या में केवल एक आदमी बैठा मिला वहां पे। तो बड़े खुश हुए, क्लासिकल म्यूजिक के थे, कि भाई चलो कुछ नहीं तो कम से कम एक आदमी तुम तो हो जो समझ रहे हो हमारी बात को। मैं इसी बात बहुत खुश हूँ, बाकी सब ना समझ तो चले गए।
तो व्यक्ति खड़ा हुआ कहा सा कि जो माइक और दरी है ये हमारी ही है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द पर्सन हु चेयरिंग द कॉन्फ्रेंस। सो मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो dehyphenation policy, it is very important, the matter of the foreign policy, and we must have to look after and looking into the matter of dehyphenation policy regarding the foreign policy, and this is the real situation of paradigm shift from 2019 to till now. What is dehyphenation policy? ये dehyphenation की policy, इसको शब्द को आप जरूर याद रखिएगा। dehyphenation, हाइफन शब्द है ना, जोड़ना, हाइफन होता है, उसी से बना dehyphenation policy। अब ये dehyphenation and the Modi government is basically working seamlessly on the basis of this dehyphenation policy, and this is the real foreign policy of today. We are talking about the idealistic approach of foreign policy. We are talking about the realistic approach of the foreign policy. What Stuart Morgenthau has explained in his famous book Politics Among Nations. Pathak ji is well known to that book. There are so many interpretations of the foreign policies regarding the different perspectives and different purviews. But today I am discussing in the matter of the maintaining relations with Russia and China. And after surgical strike on 28 September 2016, this paradigm shifting of dehyphenation was basically entirely adopted by the नरेंद्र मोदी। और ये डिहाइड्रेशन क्या है? सिचुएशन के अनुसार फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण करना। क्या सिचुएशन बन रही है, क्या स्थिति बन रही है, उसके आधार पर विदेश नीति का निर्धारण होना चाहिए। यह नहीं कि हमने पंचशील का सिद्धांत या हमारे जो कुछ सिद्धांत जो प्रधानमंत्री नेहरू जी was also very learned person and I have lot of regards for that person, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं ट्रेडिशनल 4-5 सिद्धांतों पर हम नहीं चले, क्योंकि दौर कुछ दूसरा था, आज कुछ दूसरा दौर है। और आज के बदले सिनेरियो में, इन द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ टुडे, वी मस्ट हैव टू मेंटेन आवर फॉरेन पॉलिसी इन डिफरेंट स्टेटस। कि आज जो स्थिति है उसके अनुसार देख के हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण करें। आपको याद होगा कि जब हमारी फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है, वहां हम गुटनिरपेक्षता की बात करते हैं, नॉन अलाइनमेंट की बात करते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन की नीति के बाद जब मोदी जी यूक्रेन पहुंचे, तो आप उनके भाषण को उठा के देखिए, उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया इज नॉट वर्किंग, वी आर नॉट बेसिकली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नॉन अलाइनमेंट, वी आर नॉट डूइंग एनी हाइबरनेटिव पॉलिटिक्स, बट वी आर एक्टिंग फॉर ट्रूस एंड पीस। ट्रूस एक वर्ड होता है, TRUC, ट्रूस का मतलब एक अस्थायी शांति, कि भाई तत्काल, जैसे यूक्रेन में भी तत्काल में जरूरत है ट्रूस की। तो वहां पे मोदी जी ने बोला कि हम तटस्थ नहीं है, जो दुनिया जानती है कि हम उसी नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी पे चल रहे हैं, हम तटस्थ नहीं है, लेकिन हम शांति के प्रवर्तक हैं। हमारा देश शांति की पूजा करता है, और शांति की स्थापना के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी नीति बनानी पड़ेगी, कोई नीति चेंज करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे। हम जिस भी देश से हमको जरूरत पड़ेगी हम उससे वार्ता करेंगे। हम शांति की स्थापना के लिए एक्टिंग पॉलिटिक्स ऑफ इन रेलम ऑफ द फॉरेन पॉलिसी विल डू। तो हम शांति से बैठने वाले नहीं, हम शांति के लिए काम करें। इसीलिए आप देखिए, लुक इस पॉलिसी से एक्ट इस पॉलिसी, एक आप कह सकते हैं कि जो शिफ्टिंग हुई, कि मतलब हमारा क्या है, प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना। हम थियरी की तरफ कोई बात नहीं करेंगे, हम उसका प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, हम काम करेंगे उस दिशा में। चाहे इजराइल का मैं आते कि उसके पहले इजराइल से हमारे रिश्ते बहुत, हमारा कोई प्रधानमंत्री फिलिस्तीन की तरफ हमने झुकाव रखा हमेशा से। लेकिन जब मोदी जी ने डिहाइड्रेशन की पॉलिसी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज की जो स्थिति है फिलिस्तीन के लिए, हम ऐसा नहीं कि हम फिलिस्तीन के कहीं अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन हमको इजराइल से भी उतना ही अच्छा संबंध बनाना पड़ा। इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर while doing itinerary or maintaining the visit to the Israel। इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक समय कितना टफ है कि एक तरफ रूस को भी मैनेज करना, क्योंकि रूस हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंड रहा है, और यूक्रेन में भी जाना, और यूक्रेन के लिए शांति की बात करना,
ये कितना कठिन काम है। लेकिन डीहाइफनेशन की जो पॉलिसी कहती है कि नहीं, हमें शांति की स्थापना करना है, तो इसलिए हम यूक्रेन के पास भी जाएंगे, यूक्रेन के लिए डिमांड करेंगे और हम पुतिन से भी बात करेंगे, हम अपना रिलेशन बनाएंगे, हम इजराइल को भी दोस्त बनाएंगे। और हम अगर फिलिस्तीन में कोई इस तरह की बात होगी, अगर सुवार आक्रमण होंगे, मानवता के ऊपर कोई आक्रमण होगा, तो हम वहां भी उसका विरोध करेंगे। ये डीहाइफनेशन की पॉलिसी, सिचुएशनल चेंजेस। और इसके साथ साथ यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। जब यूक्रेन के पास चाइना ने ये एक प्रस्ताव रखा कि हम रूस से बात करके, ब्राजील ने रखा कि हम रशिया से बात करके शांति की स्थापना के लिए हम बात करने जा रहे हैं रशिया, और आप दोनों को एक टेबल पर बैठाने जा रहे हैं, यूक्रेन और रशिया को। यूक्रेन ने उसी समय मना कर दिया और जेलेंस्की ने कहा we have no need to support of China and Brazil, but we have deepest and longest support and basically love and affection for India, and we have lot of faith for India. हम भारत के लिए, भारत पर विश्वास करते हैं, और अगर भारत हमको और पुतिन को एक टेबल पर बैठाएगा तो हम बैठने देंगे। ये आपकी एक विश्वसनीयता, एक निष्ठा, एक फेथ जो दुनिया में बनी हुई है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को, आपको वैदेशिक नीति को सशक्त बना। और हम भारत के हमेशा से, चाहे ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डीहाइफनेशन की पॉलिसी हो, या जो भी उसको आप नाम दे दे, नाम ही चलते हैं, क्वाइनिंग ऑफ द वर्ड से ही चलते हैं, लेकिन हमने हमेशा मित्रता की बात की है। हम हमेशा मित्र राष्ट्रों की तरफ हमारा झुकाव रहा, और हमने तो चीन को भी मित्र माना, तो उसने धोखा दिया। गलवान घाटी की बात आपको याद होगी, हमने वहां भी पहले आक्रमण नहीं किया, लेकिन चाइना ने धोखा दिया। धोखा मिलने के बावजूद हम मित्रता के नीति पर, पाकिस्तान के साथ जो स्थिति वो जानते हैं, गुजरात डॉक्ट्रिन में जो हुआ कि नेवर फर्स्ट, हम उसको लेकर चले। मोदी जी का पहला कार्यकाल आपको याद होगा कि अचानक से जहाज लाहौर उतार देते। ठीक है कि उसका मीनिंगलेस लोग कहते थे, लेकिन उसका मतलब था, हमने कोशिश किया, हमने हाथ बढ़ाया, और हम मित्र राष्ट्र को साथ लेके चलते हैं। जब कौटिल्य ने भी कहा है अपनी पुस्तक का साथ में, जो 7 आर्यन्स की बात की स्टेट की, स्वामी मात्र जनपद दुर्पोषण मित्राणी प्रकट, कि हमारे जो मित्र राष्ट्र होगा हम उसके साथ हमेशा से अच्छा संबंध बनाए रखेंगे। तो मोदी जी की यही नीति है कि सिचुएशन के अनुसार जो हमारे मित्र पहले के वो तो रहेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें सत्य का साथ देना है तो हमें इजराइल से दोस्ती करनी पड़ेगी। यदि हमें लगता है कि हमको सत्य के साथ रहना है तो फिलिस्तीन का भी साथ देना होगा। रूस से अपनी दोस्ती मित्रता को निभाते हुए हमें यूक्रेन के साथ भी रहना और वहां भी शांति के प्रस्ताव के लिए आगे बढ़ना है। हमें ब्रूनेई का भी साथ लेना है, छोटा सा देश, अभी मोदी जी वहां की यात्रा करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी जो हमारी विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति हमेशा से ये रही है कि हम सुखी रहें और आप भी सुखी रहें, दुनिया में युद्ध न हो। रियलिस्टिक अप्रोच, भले इंटरनेशनल पार्टीज में पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी रियलिस्टिक अप्रोच को, हमने कभी वार को जगह नहीं दिया और ना कभी हमारे तरफ से वार की शुरुआत हुई। अयम निजा परोवेति गणना लक्ष्य साहब संस्कृत के विद्वान बैठे, सुल्तान से उनके सामने बोलना बड़ा कठिन होता है श्लोक। अयम निजा परोवेति गणना लक्ष्य शाम उदार चित्ता नाम की वज्रवत। जो पद्म पुराण में लिखा है वेदव्यास जी ने, सर मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, 18 पुराणों की चर्चा किया है, उसमें लिखा है आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचार, कि हमको दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं। यही है विदेश नीति का आधार, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे शांति बनी रहे, यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे देश अच्छा व्यवहार करें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे राष्ट्र कॉर्डियल रिलेशंस बना कर रखें, यदि हम चाहते हैं कि दूसरे राष्ट्र हमारे उत्थान में सहयोगी बने, हमको भी उनके साथ वैसा ही आचरण करना पड़ेगा, वैसा ही रहना पड़ेगा, उसी तरह की नीतियां बनानी पड़ेगी, तभी जाके हम एक सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ सकते हैं। 5 मिनट का समय लेके बात यही होता है। टीचर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम, टीचर और वकील दो अगर खड़े हो गए भूल जाते हैं समय। 5 मिनट बताएंगे और 20 मिनट बोल जाएंगे। तो मैं भी कुछ ज्यादा बहुत थोड़ा और बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि सभी लोग थोड़ा थके हुए हैं
और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को और रिस्पेक्टेड टीचर्स जो हमारे जंगल भूषण के हैं, ये मिसाल है और मैं इसलिए यहाँ आना चाहता हूँ बार बार। मैं आपको बता दूँ कि आपका महाविद्यालय पूरे, अगर मैं उत्तर प्रदेश में कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ ग्रैंडिसमेंट। आप सोच रहे हैं सर चापलूसी कर रहे हैं, मुझे किसी की चापलूसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मिसाल मानी जाती है डिसिप्लिन, शिक्षकों के त्याग और समर्पण के लिए ये बेस्ट प्लेस मानी जाती है। आपको शायद यहाँ नहीं पता, लेकिन बाहर आप जाएंगे तो आपको भी पता होगा कि जंगल भूषण के जो शिक्षक हैं वो किस तरीके से ट्यूशन के साथ लगे होते हैं, जो बच्चे हैं वो किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कुलपति जो ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम है, जो बहुत ही एक्टिव हैं, वो भी कहते हैं इस बात को। हमने एक दो सेमिनार यहाँ कराया भी था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर, तो हम लोगों ने माना कि नहीं, विश्वविद्यालय को भी कुछ चीज़ें जंगल भूषण से सीखना चाहिए। यहाँ का सिस्टम, यहाँ की चीज़ें कैसे काम करती है, करना नहीं, ये सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, ये चीज़ें सीखने वाली होती है। हमारे छात्र बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, तो सीखने की कोई जगह छोटी बड़ी नहीं होती, हमेशा सीखना चाहिए। लर्निंग इज स्टिल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जन्म से मृत्यु तक सीखना ही है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं बहुत खुश होता हूँ, और मैं स्पेशली आई गिव माई आम्पल थैंक्स टू प्रदीप राव जी, who is founder, principal and still principal of this institution, who has given me precious time in this college, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दूंगा यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है। आरती मैडम इतना अच्छा संचालन कर रही थी, मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूँगा उनके सामने। के पाठक जी को देख के मैं थोड़ा अलग, मुझसे एक साल जूनियर है, जितने लंबे है उतना ही लंबा ज्ञान भी है, तो इससे थोड़ी घबराहट होती है। कन्हैया से जो सुनने के बाद तो मैं लगा कि बोलो ही ना कुछ, क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीज़ों का इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन करना, और भी एंशिएंट हिस्ट्री में जिसमें संस्कृत का भी ज्ञान उतना ही आवश्यक है। और कुशलनाथ मिश्र सर के सामने बैठ के गंभीर वक्ता हैं, सूर्यकांत जी वेदों के जानकार हैं, पूरे भारत में जाने जाते हैं संस्कृत विभाग में। और यहाँ जो अभी मैडम होम साइंस की मैडम, आपने बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया, आप सभी लोग बैठे रहे, स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छा बोले, तो रियली मैटर ऑफ दी heartfelt appreciation to all of you, and still I am giving my humble thanks to all of you, and in the last but not the least, my deepest thanks to the members of the dais and the organizing committee as well as the management of this college. Thank you so much.